सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello everyone, welcome to Pariskar International College. My name is Ajay Singh and I am going to teach you physical geography this year. So today's topic is internal structure of the earth. Okay, so before that you have to subscribe our channel on YouTube, that is Pariskar World channel, and press the bell icon to get the latest notification of our new videos. Also we have another channel on YouTube, that is Pariskar College. So you have to subscribe to this channel also, and also press the bell icon to get the latest notification of our new videos related to our courses. Okay, so before starting the chapter, let's have a look at the old questions which were asked in earlier examinations. So first question is, earthquake intensity is measured on University of Rajasthan 2014 question. So options are Richter scale, Mercalli scale, Phi scale and time scale. Second question is, average density of earth is University of Rajasthan non-collegiate 2018 question. Options are 2.5, 3.5, 5.5 and 11. So at the end of this lecture you will get to know the answer of these questions. Question number 3 is, which of the following statement is not correct about earthquakes? ISP 2001. Okay, so now we know that this topic is very important because we get questions in examinations from these topics, even in UPSC level ISP. Okay, so first option is, the intensity of the earthquake is measured on Mercalli scale. Second option is, the magnitude of an earthquake is measure of the energy released. Third option is, earthquake magnitude are based on the direct measurement of the amplitude of seismic waves. Fourth one, in the Richter scale, each whole number demonstrate a 100-fold increase in the amount of the energy released. So we will study about the seismic waves and the earthquakes. So we will know the answer. Fourth question, which of the instrument is used to measure earthquake waves? UPPCS Mains 2017. Just like RAS, they have UPPCS. Okay, in UP. So first option is seismogram. Second option is seismograph. Third option is seismoscope, and fourth is seismometer. So these four terms, they are basically related to earthquakes, but they have minor differences in between them. So we will know about them and we will answer the question in the end of the chapter. Question number 5 is, write a short note on epicenter. This is a descriptive part of the paper where you get short note. So in this short note you have to write about epicenter. What is epicenter, where it is and how it is related to the earthquakes. University of Rajasthan 2018 question. Question number 6. What are the different layers of Earth's interior? Explain the layers in reference to seismology with diagram. University of Rajasthan 2019. So today's lecture is all about seismograph, earthquakes and other sources from which we get to know about the interior of the Earth. So now let's start the topic. So before we start the topic, let me ask you a question. Where do we live? I am not asking about the place you live. I am asking about the body on which you live. That is our Earth. So what do you see on our Earth? Natural things like on the surface of the Earth. So we have two parts, continents and oceans. On continents we get to know about mountains, hill, plateaus, plains and valleys. For example, for mountains we know Aravalli ranges, we know Himalayas, okay, Rockies and Andes. Hills are the smaller size mountains, which are getting lowered with the due course of time. Plateaus, for example, Tibetan Plateau. Plains, Ganga Brahmaputra Plain. Valleys are actually the part between two mountain slopes. So these are the things which we can see through our eyes. So because they are visible on the surface. Okay. In oceans, there are ridges, islands, abyssal plain and trenches. So ridges are basically the weaker parts of the ocean bed. जो पानी होता है,
है ना। हम लोगों ने क्या देखा है, समुद्र में पानी होता है, लेकिन पानी के नीचे का जो सरफेस है ये फीचर्स वहाँ मिलते हैं। ओके, सो रीजेस क्या होती है कि जो वीक जोन्स होते हैं हमारे ओशन सरफेस के अंदर, तो वहाँ से जो मोल्टन लावा निकलता है वो जब बाहर निकलता है तो दे फॉर्म लाइक दिस स्ट्रक्चर। So the molten lava comes out of the surface from the weaker sections in the oceans and get dispersed. So these structures are actually the ridges which are found in the oceans. Famous ridges like we have in Atlantic Ocean, which is in S-shaped. Okay, islands, we have many islands. Andaman Nicobar is an island, Maldives. Okay, abyssal plains are just like the plains on the surface, but they are very deep in oceans. That is why we call them abyssal. Abyssal means deep. Trenches are actually the convergence zone between two plates. We will study about them in further lectures, but here let me tell you an example about it. That is Mariana Trench, which you have read about it in your schools, which is almost 11,000 meters in depth. So imagine you can actually dip Mount Everest inversely in that trench. That is the deepest point on our Earth's surface. So apart from this, what else we know about the Earth? Why are we studying this topic? Because let me tell you one thing. We humans are born curious. We are very curious. That is the reason we have developed from the primitive man to today where we are. Okay, so that curiosity is the thing which makes us question things, and when we get the answer of that question, we develop a new knowledge. So today's curiosity is what is beneath your legs, what is beneath the surface of the Earth. So today we will talk about it. So now let's ask a question. What is beneath the surface of the Earth? So few scientists and geologists in 1970 dug up a hole in Kola Peninsula in Russia. Okay, so they dug up a borehole, just like the water bore wells we have in our villages and the cities. So they dug up a hole up to 12,226 meters. That is nearly 12 kilometers deep. So up to that they dug up a hole and they took out samples of rocks and whatever material they found in the tubes, and they actually studied them, they did research on them, and they used their knowledge to say, okay, these are the materials we have in our surface. But that was not enough, because the radius of the Earth is 6,371 kilometers. But हम लोगों ने अभी तक केवल 12 किलोमीटर की खुदाई करी। इसका मतलब उसका 1% भी नहीं है हम लोग देखा जाए तो उस 1% के बिहाफ पे हम लोग क्या जस्टिफाई नहीं कर सकते कि द वट एवर मटेरियल वी हैव गॉट इज द होल इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो we identify various other sources which tell us about the interior of the earth. So our next thing is the important sources. So what are those sources? Let's classify them into the theories of origin of earth. Second is the artificial sources. Okay, so theories of the origin of the earth. Here we are talking about earth as a planet and theories of origin, कि अर्थ कैसे बनी. बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारे रिसर्चर्स आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है. उनमें से कुछ 4-5 थ्योरीज जिनके बारे में हम लोग देखेंगे, और हाउ डिड दे ट्राई टू डायग्नोस और फाइंड आउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द टाइप ऑफ मटेरियल व्हाट इज इनसाइड द अर्थ. Okay, the second one is the artificial sources. So artificial sources are like man-made sources, जो हम लोगों ने खुद नहीं सोच रखे हैं कि हाँ ये चीज़ हमको ये बता रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर. देन थर्ड इज द नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज में वी विल टॉक अबाउट द volcanoes and earthquakes, because they are the natural incidents which happen on our earth, and through studying them we can get the knowledge about the interior of the earth. So let's start with the theories of origin of the earth. So the first theory is gaseous hypothesis. It was given by Immanuel Kant in 1755. So he said, according to him, the interior of the earth is in liquid state. Okay, so उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब गैसियस पार्टिकल्स हुआ करते थे. वो पार्टिकल्स क्या है कि बिल्कुल स्टेशनरी थे,
फिर कहीं से उनके अंदर मूवमेंट शुरू हुआ एंड रोटेशनल मोशन भी शुरू हुआ। तो मूवमेंट हुआ तो दो पार्टिकल्स स्टार्टेड स्ट्राइकिंग टू ईच अदर एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ओके, सो वो जो टकराना हुआ, हीट एनर्जी निकलना हुआ, उससे क्या हुआ कि क्लाउड्स बनने लगे। धीरे धीरे दोज क्लाउड्स स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड एंड लेटर ऑन फॉर्म्ड एज स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ओके, सो इनके हिसाब से वो प्लैनेट्स के अंदर जो कोर है, जो इंटीरियर है बहुत डीप के अंदर, दैट इज स्टिल इन द लिक्विड स्टेट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो कंडेंस होते गए, है ना, तो वो धीरे धीरे उनका टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा। जब किसी चीज़ का टेम्परेचर कूल होता है तो सबसे पहले आउटर लेयर्स का टेम्परेचर कूल डाउन होता है। तो इसलिए जो आउटर लेयर थी अर्थ की, दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं। ओके, लेकिन अंदर का टेम्परेचर जो है वो अभी तक इतना ठंडा नहीं हो पाया है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है टेम्परेचर, इसलिए वहाँ पे कैसा है, अंदर से वो लिक्विड है, एज पर इमानुएल कांत। ओके, सेकेंड थ्योरम हाइपोथेसिस वाज गिवन by the Laplace, that is nebular hypothesis. Okay, so according to him the interior of the earth is in the gaseous state. Okay, so उनका भी ऐसा ही कुछ डेफिनेशन था कि ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन था, बट उन्होंने कहा कि डिफरेंस क्या बताया कि इन्होंने कहा था कि स्टेशनरी पार्टिकल्स थे, इन्होंने कहा कि नहीं, पार्टिकल्स में ऑलरेडी मूवमेंट था। ठीक है, इन्होंने कुछ इनकी कमियों को सुधार किया था। तो वो जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट की वजह से दे स्टार्टेड स्ट्राइकिंग टू ईच अदर एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। सो उनके हिसाब से ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो अभी भी गर्म है और दैट इज इन द गैसियस स्टेट। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से टेम्परेचर इतना ज़्यादा है अंदर कि जो भी मटेरियल है दैट इज इन द गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर। थर्ड वन इज द टाइडल हाइपोथेसिस। ओके, तो टाइडल हाइपोथेसिस जो है ये जेम्स जीन्स की दी हुई है। इन्होंने कहा था कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है दैट इज इन द लिक्विड स्टेट, है ना। लगभग सबका एक ही एक्सप्लेनेशन होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इनकी जो थ्योरी है दैट इज बाइपोलर इन नेचर। इट मीन्स कि इन्होंने कहा कि दो बॉडीज हुआ करती थी जब यूनिवर्स की मेकिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम। सो दो स्टार्स हुआ करते थे, एक स्टार छोटा था साइज में, एक बड़ा स्टार था। तो जो छोटा स्टार था दैट इज द सन विच वी हैव इन आवर सोलर सिस्टम, एंड अदर स्टार इज समवेयर आउटसाइड आवर गैलेक्सी और आवर सोलर सिस्टम। सो ही सेड कि जो बड़ा जो स्टार था, ही स्टार्टेड पुलिंग द स्मॉलर वन, दैट इज आवर सन। सो जो पुल हुआ, उस पुल से जो सन था, सन के अंदर कुछ जो मैटर होता है, उस मैटर में से कुछ पार्टिकल्स बाहर आने लगे। वो धीरे धीरे बाहर आने लगे एंड स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग अगेन एंड द सेम प्रोसेस कि वो कूल डाउन होने लगे और उनका टेम्परेचर अंदर का अभी भी गर्म है। सब वही कहानी है, बस यहाँ पे दो प्लैनेट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो कूलिंग डाउन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से रोटेशन भी शुरू हो गया क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स होता ही है। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या बोला कि इंटीरियर कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। Fourth is planetesimal hypothesis. Okay, so this theorem was given by the Chamberlain. He was an American geophysicist. So he said the interior of the Earth is actually in the solid state. Okay, so he was the first one who said that core of the Earth is in solid state. इनके हिसाब से भी वैसा ही कुछ था कि दो प्लैनेट्स थे, बट इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और उस चेंज की वजह से क्या बोले कि जो कोर है दैट इज इन अवर सॉलिड स्टेट। ओके, so these are the basic theories of origin of the earth. We will study them in further lectures. बहुत एलिमेंट्री है, बहुत टेक्निकल भी है, इसीलिए मैंने आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेज के ऊपर। आर्टिफिशियल सोर्सेज लाइक आई सेड अर्लियर, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये हमको कैसे बताते हैं? आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स लगाना होगा, बेसिक फिजिक्स है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर बनता है या प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी पे कैसा होता है, वो बॉडी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के वो पास में आने शुरू होते हैं। ओके, वो कंप्रेस होने शुरू होती है, कंप्रेस होती है तो सब प्रेशर ही बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता, उसकी डेंसिटी बढ़ती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हम जो हमको बेसिक सा नॉलेज हमको होना चाहिए, इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये these are actually insufficient to tell us about the interior of the earth. These are not just enough. Okay, but still we have to know, we have to study कि इनका ऐसा क्या रोल रहा है हमारे नॉलेज को डेवलप करने में। ओके, सो फर्स्ट वन इज द डेंसिटी। तो सो डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, हिंदी में बोलते हैं घनत्व, मतलब एक 1 by 1 क्यूब, एक क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके ऊपर कितना हम जो भी मैटर है उसका कितना उसका मास है, तो दैट इज द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम और पर्टिकुलर मैटर। ओके, सो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज बेसिकली 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उन्होंने जो जियोग्राफर्स थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस लगाई, उन्होंने दे गेट टू नो दैट कि एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
बट द डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यानी कि एक अर्थ का एक क्यूब के अंदर 3 ग्राम हमारा अर्थ का क्रस्ट आता है, जबकि एवरेज कितना है 5.5 है। इसका मतलब जो कोर है दैट शुड बी वेरी मच हायर, तभी तो एवरेज 3 आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो मटेरियल्स था जो और स्टडी करी, तो उन्होंने एक अजम्पशन लगाया, उन्होंने एक फिगर बताया कि द डेंसिटी ऑफ कोर इज 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो उन्होंने ये सब कैसे बताया, उन्होंने वही कारण बताया कि जो टॉप लेयर थी दैट इज़ द लाइटेस्ट इन मास, लाइटेस्ट इन द वेट, सो उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, एटमॉस्फेयर है तो कोई प्रेशर भी नहीं है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम है। थोड़ा सा अंदर गए, डीप में गए तो डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ती गई, है ना। और डीप में गए और बिल्कुल कोर पे चले गए, आप अर्थ के सेंटर पे चले जाइए, तो वहाँ पे जो मटेरियल है वो इतना डेंस है कि उसकी डेंसिटी है दैट इज़ 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दीज आर द बेसिक फिगर्स विच वी नो थ्रू आवर साइंटिफिक नॉलेज। बट अब प्रेशर की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस कैसे कि द कॉज ऑफ हाई इंटरनल डेंसिटी, जो हम लोगों ने भी पढ़ा 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो दैट इज द डेंसिटी ऑफ कोर। सो कॉजेज ऑफ हाई इंटरनल डेंसिटी क्या हो सकते हैं, है ना। अजम्पशंस लगाए, साइंटिस्ट लोगों ने अजम्पशंस लगाए। तो फर्स्ट वन इज द प्रेशर एक्जेक्टेड बाय द अपर लेयर्स, जो कि बिल्कुल सही है। आप एक के ऊपर एक कुछ चीज़ें रखेंगे तो प्रेशर ऊपर का जो वेट होगा, ऊपर के जो लेयर्स होंगे उनका प्रेशर नीचे वाली लेयर पे पड़ेगा और वो प्रेशराइज्ड होंगी, वो कंप्रेस्ड होंगी और उनकी डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। पहली बात तो ये एक फैक्ट था जो हम लोग बेसिक साइंस से जानते हैं, उसी को साइंटिस्ट ने यूज़ किया एंड दे सेड कि इंटरनल ऑफ द कोर का प्रेशर हो इसकी वजह से ज़्यादा है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस कैसे कि हर मास या हर बॉडी का एक पर्टिकुलर ही डेंसिटी हो सकता है, उससे ज़्यादा उसको अगर कंप्रेस करेंगे तो आइदर इट विल मेटामॉर्फोसिस, मतलब उसका फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा या फिर वो उसकी स्टेट ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये थ्योरी जो ये फेल हो जाती है डीप में। क्यों? क्योंकि जैसे कोर है, कोर के ऊपर आप सोचो कि कोर दैट सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर्स बिलो अस, सो उसके ऊपर इतना वॉल्यूम है तो वो मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए उस केस में तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो थ्योरी थी ये जो स्टेटमेंट है ये केवल अपर लेयर्स के या मिडिल लेयर्स तक ही लागू होता है, उसके नीचे कोर में ये लागू नहीं होता है। सेकेंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ हाई डेंसिटी रॉक्स। तो अब यहाँ पे एक दूसरा अजम्पशन लगाया। वो अजम्पशन क्या था कि हो सकता है कि वहाँ पे ऐसी रॉक्स हों जो ऑलरेडी उनकी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है, जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, दैट इज सेडिमेंट्री बाय नेचर। ओके, सेडिमेंट्री बाय नेचर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है उनका जो डेंसिटी होती है दैट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम लोग जब रॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे तो जो हमारा अपर लेयर है दैट इज कंसिस्टेड ऑफ sedimentary rocks which are lighter or which are less denser than the metamorphic rocks. So जब ये sedimentary rocks हैं वैसे से आप नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। पहली बात तो as you go deep in the surface in the interior of the earth the density starts to increase. Okay, so कोर पे आते हैं। कोर पे डेंसिटी जो है वो ऑलरेडी 11 का है, जो अज्यूम्ड है। वो इतना ज़्यादा क्यों है कि या तो वहाँ पे रॉक्स थी या फिर जो प्रेशर था वो था। अगर प्रेशर ज़्यादा होता तो ये रॉक्स क्या हो जाती, मेल्ट हो जाती, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पे जो रॉक्स है वो ऑलरेडी इतनी डेंस है, हो सकता है ऐसा एलिमेंट्स हो वहाँ पे जो कि जिनकी डेंसिटी इज ऑलरेडी 11 और मोर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द प्रेशर। सो एज आई सेड अर्लियर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी दे आर इंटर रिलेटेड। हम लोगों ने बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है। नाउ टेम्परेचर। सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैंने बोला ना कि जैसे आप डीप में जाते हो तो डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। जब किसी चीज़ पे प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी जब कंप्रेस होती है, आयंस उसके नज़दीक आते हैं तो उसके अंदर हीट एनर्जी जनरेट होती है। ओके, सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन डेप्थ इज 1 डिग्री पर 32 मीटर्स। ये हमारे एक जनरलाइज्ड फिगर है हमारे पास, जो कि हमारे अर्थ के बारे में हमको पता है। लेकिन ये जो रेट है इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ की अपर लेयर है उस पर ये रेट है, लेकिन अंदर की साइड में रेट कुछ अलग है। रेट कैसी है वो हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं या फिर थोड़ा सा हम एक आइडिया लगाएंगे। ओके, सो वी नो द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ये हमारे पास एक फिगर है जो हमको पता है ना। तो पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो 32 मीटर्स पे कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अच्छा, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ओके। सो 32 मीटर्स में 1 डिग्री हो रहा है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1/32, ओके। अच्छा, 1 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स। तो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 1000 मीटर। सो 1/32 इंटू 1000, कैलकुलेशन लगाएंगे तो दैट्स विल बी 31.25 डिग्री सेल्सियस। सो एट एवरी 1 किलोमीटर टेम्परेचर शुड राइज बाय 31.25 डिग्री सेल्सियस, ओके। अच्छा, अर्थ का कितना है रेडियस? 66,371 किलोमीटर्स। तो लेट्स मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। तो नंबर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी अराउंड 1,99,093.75 डिग्री सेल्सियस। इतना होना चाहिए। देयरफॉर टेम्परेचर शुड बी दिस वन, ओके। कहाँ से आया? मैंने आपको बताया। लेकिन क्या इतना टेम्परेचर अर्थ के अंदर पॉसिबल है क्या? अगर टेम्परेचर कोर के अंदर इतना टेम्परेचर हुआ, आप इमेजिन कीजिए 1,99,000 टेम्परेचर, तो इसका मतलब जो अर्थ है ना वो अभी तक तो इवोपरेट हो चुका होता है ना, फुफ इवोपरेट हो चुका होता हवा में। हम लोग होते भी नहीं अर्थ के ऊपर, अर्थ खुद भी नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिगर आ रहा है दैट इज़ वेरी मच हायर देन द व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड द अर्थ। सो उन्होंने जोग्राफर्स ने बोला कि नहीं, ये जो रेट है दैट दिस रेट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द डेप्थ। ये रेट है, मैं रेट की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। टेम्परेचर तो फिर भी बढ़ रहा है, 32 मीटर्स पे 1 डिग्री है, ये तो टॉप का है, ये रेट है ना। लेकिन ये जो रेट है, ये रेट बढ़ रही है या घट रही है, ये डिफाइन कैसे होगा कि हम लोग नीचे जा रहे हैं कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये रेट क्या होगा? धीरे धीरे, क्योंकि मटेरियल चेंज हो रहा है, अंदर लेयर्स है अर्थ के अंदर, वो चेंज होती जा रही है, उनका कंपोजिशन चेंज होता जा रहा है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, तो उसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो भी अलग है। तो उससे हो क्या रहा है कि ये जो टेम्परेचर की जो रेट है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज एक्चुअली डिक्रीज विथ द डेप्थ ऑफ द अर्थ, ओके। अच्छा, लेकिन सर फिर यहाँ पे हाई क्यों है? सरफेस के ऊपर हाई क्यों है? अगर नीचे अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसके आसपास मतलब माना बहुत मोल्टन स्टेट में है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है ना, डेंसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन सरफेस पे ऐसा क्यों है कि 32 मीटर्स पे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ रहा है? उसका कारण ये है कि वी हैव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन आवर द टॉप लेयर इन आवर क्रस्ट। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस निकालते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं, जिसकी वजह से जो नियर बाय जो रॉक्स होती है वो दे हीटेड अप एंड गेट द टेम्परेचर इज हाई इन द क्रस्ट, ओके। सो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई टेम्परेचर के बारे में। लेकिन दीज फिगर्स आर नॉट कैपेबल इनफ टू एक्सप्लेन द कॉज, द मेन क्वेरी, द मेन क्वेश्चन वी हैव इन आवर माइंड कि अंदर क्या है। क्लियर है? इन्होंने बस एक आइडिया दिया है कि रॉक्स अलग अलग है, रेट चेंज हो रही है, इसीलिए टेम्परेचर इतना नहीं होना चाहिए, इससे कम ही है अंदर, नियर अबाउट 4500 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ तो 4500 और कहाँ पे 1,99,000 है। तो ये जो फिगर है, इसीलिए टेम्परेचर वगैरह जो आर्टिफिशियल जो हमारे पास सोर्सेज हैं, दे आर नॉट कैपेबल इनफ। तो हमको अब बात करनी होगी नेचुरल सोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग जब डेथ पे जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं अर्थ के, तो फिगर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए। तो अगर इफ़ यू dig a hole up to 100 kilometers, that the temperature there should be 1100 to 1200 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज है, ठीक है, कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, 100 से आप 400 किलोमीटर गए तो 1500 डिग्री सेल्सियस हुआ। इंक्रीज कितना हो रहा है? लगभग 300 टू 400। यहाँ पर भी इंक्रीज है, लगभग 300 किलोमीटर्स का है। अच्छा, यहाँ पर भी 700 किलोमीटर्स पहुँचे तो यहाँ पर 1900 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ना। मैंने क्या बोला था कि रेट ऑफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, नॉट द टेम्परेचर। रेट में डिफरेंस है, टेम्परेचर में यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। 2900 किलोमीटर्स पे आए तो 3700 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर पता लगा। एट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ temperature is 1500 at the depth of 5100 kilometers, temperature is 4300 degrees Celsius, and at the center of the earth, that is 6371 kilometers, temperature is 4500 डिग्री सेल्सियस। तो आप थोड़ा देखिए कि वहाँ 1,99,063 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जो एज पर वो कैलकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 4500
डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्सेस थे जिनसे हमको पता लगा अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ कुछ, है ना, नॉट कम्प्लीटली बट कुछ कुछ। अब हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेज की। वैसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉल्केनिज्म, है ना, वॉल्केनो का इरप्शन होना एंड अर्थक्वेक्स, ये बहुत नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल इंसिडेंट्स है, लेकिन हमको दे गिव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। सो फर्स्ट वन इज द वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, ये एक माउंटेन था, उसके ऊपर एक वीक जोन था, नीचे से एक वॉल्केनिक पाइप था, नीचे से मैग्मा आया, मैग्मा बाहर आके लावा बना, कुछ और भी निकल रहा है, देखिए साथ में गैसेज भी निकल रही है, एक्सप्लोजन भी हो रहा है, रॉक्स भी हैं और एक क्लाउड्स भी हैं। क्लियर है ये चीज़। तो वॉल्केनिक जो मैटर निकलता है अंदर से, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कुछ चीज़ों में, जैसे कि गैस निकला, अभी हम लोगों ने देखा ना, एक गुब्बार निकला, एक, है ना, क्लाउड ऑफ गैस निकला अंदर से। सेकंड इज द वाटर वेपर। थर्ड वन इज मोल्टन लावा, जो मैग्मा इज एक्चुअली द मोल्टन लावा विच इज इनसाइड द अर्थ, दैट इज मैग्मा। जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, सरफेस के बाहर आता है, तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। और लावा के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है, तो हम लोग उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते, इतना गर्म होता है वो। तो मोल्टन लावा। एंड द लास्ट वन इज़ द रॉक्स, जो फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं वो हवा में उछलते हैं और काफ़ी दूर जा गिरते हैं, एंड दे कॉज ह्यूज डैमेज टू द लाइफ ऑफ पीपल एंड द एनिमल्स एंड हाउसेज इकोनॉमिकली। ओके, सो दीज 4 टाइप्स ऑफ मैटर एक्चुअली कम्स आउट फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस और द वॉल्केनोज। सो जब इनकी स्टडी करेंगे, इसका मतलब हमको देखिए आइडिया क्या लग रहा है कि गैस है, मतलब इरप्शन हुआ, गैस निकला, इसका मतलब कि समवेयर इन अर्थ देर इज गैस ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक्स। जो भी जगह होती है, कोई भी थोड़ा जगह मिला, वहाँ पे क्या है, गैस है। अच्छा, वो गैस बहुत सारी पॉइजनस गैस भी होती हैं एंड वेरी मच हार्मफुल टू द अवर क्लाइमेट, फॉर अवर क्लाइमेट, लेकिन वो गैस होती है। सेकंड इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर हम सोचते थे बरसात वाला जो वाटर वेपर है, जो पानी हम लोग देखते हैं कंडेंस्ड पानी होता है, ठीक है, तो वैसे ही हमारे सरफेस के नीचे भी पानी होता है। हम लोग बोरवेल भी डिग करते हैं ना, तो पानी आता है, पानी उजेज आउट, तो वो जो पानी होता है वो भी वाटर वेपर की फॉर्म में जब एक्सप्लोजन होता है या फिर जो इरप्शन होता है, तो वो बाहर आता है गैस के साथ, बाकी मटेरियल के साथ। थर्ड वन इज द मोल्टन लावा। जो लावा नीचे था रेड कलर का, जो आपने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में देखा था कि वो नीचे से आ रहा है एंड इट गेट्स इज कम टू द सरफेस एंड गेट्स डिस्पर्स्ड, है ना, वो फ्लो होता है, फ्लो होकर उसके बाद जो भी चीज़ आ रही है उसको जलाता जाता है, ठीक है। तो वो जो लावा है उसका अगर हम लोग जब ठंडा हो जाता है तो उसका सैंपल उठाया और उसको हम लोग स्टडी करेंगे, तो हमको पता लगेगा कि हाँ ओके, इस माउंटेन के नीचे इस प्रकार की मिनरल्स हैं, इस प्रकार की रॉक्स हैं। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, मोल्टन लावा से। फिर आती रॉक्स। अच्छा, कुछ पार्ट रॉक्स के जो बम्बार्डमेंट्स हुए, जो रॉक फ्रेगमेंट्स थे जो कि जाके गिरे दूर, हम लोग उनका भी सैम्पलिंग कर सकते हैं। क्लियर है। मोल्टन लावा का तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी गिरा और थोड़ी देर बाद में ठंडा हो जाएगा, तो उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं एंड हमको बताएंगे कि किस तरीके का कंपोजिशन है अर्थ के नीचे, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा सोर्स है कि हमको पता लग रहा है कि अर्थ के अंदर गैस भी है, मोल्टन स्टेट में लावा भी है, सॉलिड स्टेट के अंदर रॉक्स भी है, और पानी तो खैर थोड़ा बहुत है जो हम पी रहे हैं, नीचे से अंडरग्राउंड वाटर है। क्लियर है। तो ये बहुत एक अच्छा सोर्स है। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, फील भी किया होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही बैरूत के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ है। लेबनान एक कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है बैरूत। वहाँ जो एक्सप्लोजन हुआ था, वो एक्सप्लोजन इतना ह्यूज था, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इट कॉज्ड ए 4.5 रिचर स्केल का अर्थक्वेक। क्लियर है। तो वो हो गया। भुज में अर्थक्वेक आया था, आपको पता हो तो, है ना, आप छोटे थे लेकिन आया था, छोटे थे आप तब। तो वो जो अर्थक्वेक जो एक्टिविटीज़, जो इंसिडेंट्स हुए, उनसे हमको क्या पता लगा कि अर्थ के बारे में अंदर कैसा क्या मटेरियल है। लेकिन वो पता कैसे लगा, उस पता लगने के पीछे कौन कौन सी चीज़ें थी, क्योंकि वी डोंट सी एनीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ, है ना, कुछ मटेरियल बाहर नहीं आ रहा, जैसा कि वोल्केनोज में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, कि वो जब अर्थक्वेक आता है तो वो वेव्स निकलती है, वो वेव्स जाके और फिर अर्थ के सरफेस को हिलाती है, मूवमेंट कराती है। छोटा सा एग्जांपल है, दिल धड़कता था हमारा ना, हमारे वाइब्रेशंस, हमारा हार्ट बीट करता है। सो नॉर्मली आप फील करते हो कि हार्ट बीट हो रहा है, नहीं कर रहे हो ना, लेकिन स्टिल इट इज़ बीटिंग, है ना। आप अंदर हाथ लगाओगे तो फील कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको महसूस भी नहीं होगा कि हार्ट अपना काम कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन आपके सामने वो इंसान आ जाए जिसको आप बहुत पसंद करते हो, सपोज कर लो आपका क्रश है ना, स्कूल में कोई होगा या अभी कोई सोसाइटी में, तो वो जो क्रश है वो आपके सामने एकदम सडनली आ जाए, है ना, अनएक्सपेक्टेड, तो आपका दिल कैसे करेगा, दिक 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 दिक। आप अंदर कैसे महसूस करोगे, वाइब्रेशंस। क्लियर है।
तो वो जो वाइब्रेशंस है, वो जो क्रस्ट की वजह से आपके जो वाइब्रेशंस आया, वही वाइब्रेशंस हमारे वैसी ही वाइब्रेशंस अर्थ के अंदर भी होती हैं। अंदर अगर कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, कुछ प्लेट्स के बीच में मूवमेंट हुआ, तो वो जो वीक जोन होता है उसकी वजह से मूवमेंट हुआ, तो वाइब्रेशंस वहाँ से वाइब्रेशंस रिलीज होती हैं। वो वाइब्रेशंस जो हैं वो अर्थ के सरफेस तक आती हैं एंड दे कॉज डैमेज टू आवर प्रॉपर्टी एंड आवर ह्यूमन लाइफ। ओके, सो हम लोग उन वाइब्रेशंस, उन वेव्स के बारे में अब बात करेंगे। बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज दिया इन लोगों ने, इन वेव्स ने हमको अर्थ के बारे में। ओके, सो वी कैन क्लासीफाई दोज वेव्स इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, so depending upon their properties. So first one is the primary waves. We can denote primary waves through capital letter P. Second is the secondary waves. Okay, second number, secondary waves we can denote it by capital letter S. And third one is the surface wave, and we denote it with the letter L. अब ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस वेव को हम लोग लॉन्ग वेव भी कहते हैं, उसको लव वेव भी कहते हैं, है ना। लेकिन लव के चक्कर में मत पड़ना, बहुत लफड़ा है इसका, है ना, बहुत बड़ा पंगा होता है इससे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डैमेज जो होता है अर्थक्वेक की वजह से उसी वेव की वजह से होता है। क्लियर है? तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हम लोग बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में लेंगे। वैसे हमारा एक सेपरेट चैप्टर भी है इसका, उसमें हम लोग बहुत डिटेल से जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत एक आइडिया ले लेते हैं। तो पहला होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक वेव्स। ये जो वेव्स होती हैं पी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स, इनको मेजर करने के लिए, इनकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अब याद कीजिए, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो पहले आया हुआ था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। उस क्वेश्चन में क्या था कि विच इंस्ट्रूमेंट यू यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ, सो दैट आंसर विल बी सिस्मोग्राफ। सेकेंड वन इज रिचर और मर्करी स्केल आर द स्केल्स टू शो अर्थक्वेक इंटेंसिटी। जो इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है दैट इज सिस्मोग्राफ, लेकिन वो जो ग्राफ होता है या फिर वो जो लाइंस होती हैं, उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिचर स्केल, या फिर वो रिप्रेजेंट करती है रिचर स्केल को, कि अगर 1 लेवल का, अगर एट द रिचर स्केल अगर 1 है, तो जो अर्थक्वेक होगा वो हमको महसूस भी नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे वो 6, 7, 8, 9 तक पहुंच गया, 11 तक का अर्थक्वेक आया है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बाद, तो 11 या 9 पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि शहर के शहर तहस नहस हो जाएंगे। क्लियर है? सो ये 2 स्केल्स होती है, रिचर स्केल एंड मर्करी स्केल। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, दोनों का पैरामीटर्स अलग है मेजर करने के, लेकिन करंटली वी हैव टू फोकस कि बस हमको इतना जानना है कि रिचर स्केल, मर्करी स्केल आर यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। ओके, क्लियर है? सो आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सिस्मोग्राफ देख लेते हैं, हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं कि कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है और कैसे वो काम करता है, और उसका बेसिक क्या उसका फंक्शनिंग है। तो एक सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, आजकल वैसे डिजिटल होने लगे हैं, लेकिन ये मैकेनिकल एक इंस्ट्रूमेंट जो पहले होता था। तो यहाँ पे क्या होता है? एक बेस होता है ना, इसको आप टेबल के ऊपर रख दीजिए, तो ये बेस क्या करेगा कि जैसे जब अर्थक्वेक में हल्की भी वाइब्रेशंस होगी ना, तो ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा कि ये आपने रख दिया, यहाँ से देखिए एक ये पोल जा रहा है, ये पोल आगे जाके, और इस पोल से यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव, एक मैं अगर बोलूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। तो ये सिस्मोमीटर क्या होता है? एक थ्रेड होता है, वायर होता है, एक बॉब होता है, जो प्लम बॉब होता है ना, आपने पेंडुलम में देखा होगा, तो वो बॉब होता है और नीचे इसके एक पैन लटक रहा होता है। तो क्या होता है कि जब ये इंस्ट्रूमेंट, जब ये अर्थक्वेक जब भी ये हिलेगा ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे हिलना शुरू होगा। उस केस में क्या होगा कि ये जो नीचे आप रोलर देख रहे हैं, जिसको ड्रम भी लिखा गया है, ये रोलर भी होता है। आज के लिए डिजिटल होने लगे हैं, लेकिन पहले रोलर सीट होती थी पेपर की, तो वो पेपर की सीट के ऊपर ये ना ऐसे मूवमेंट करता रहता था। तो जैसे हार्ट बीट होती है ना, वैसा मूवमेंट हो रहा है। तो अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है तो कोई अर्थक्वेक नहीं है। हल्का सा आया तो वो बता देगा कि हाँ हल्का सा अर्थक्वेक है, माइनर अर्थक्वेक है। लेकिन अगर ये ऐसा हो गया तो अर्थक्वेक कैसा होगा? बहुत डिवास्टेटिंग होगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो ये चीज़ ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, ये बहुत मेजर प्रोसेस है। ठीक है, एक पार्ट इसका सिस्मोमीटर है, ये जो रोलर है इसको सिस्मोग्राम बोला गया है ना। कंफ्यूज में तो ये ग्राफ अलग चीज़ है, ग्राफ तो पूरा इंस्ट्रूमेंट है। ग्राम क्या होता है? ये जो रोलर होता है जिसके ऊपर रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं। अच्छा, और जो चीज़ रिकॉर्ड कर रही है, वो जो पेंडुलम है, उसको क्या बोला गया है? सिस्मोमीटर बोला गया है। क्लियर है? 3 चीज़ें हैं, तीनों होगी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट वन इज फोकस। सो फोकस क्या है? फोकस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये कहाँ पे होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि हमारे अर्थक्वेक के नीचे कहीं वीक सेक्शंस होंगे, वीकर जोन्स होंगे, वहाँ मूवमेंट होगा, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्टिविटी हुई, उससे वाइब्रेशंस निकली। इसका मतलब ये अर्थ के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? इन द इंटीरियर ऑफ द
अर्थ, इनसाइड द अर्थ, ओके. सो दे आर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ. वहाँ जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ, दैट पॉइंट इज फोकस. नेक्स्ट वन इज एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस विच एक्सपीरियंस फर्स्ट ट्रिमर. क्लियर है ये चीज़. तो चलिए अब एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, इन दोनों का. तो डायग्राम कैसा कि यहाँ ये मैंने एक अर्थ बना दी, इस अर्थ में एक पॉइंट ले लिया इनसाइड द अर्थ, दैट इज फोकस. क्लियर है. इस फोकस के ऊपर एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से यहाँ से रेडिएशंस निकलना शुरू हुई और रेडिएशंस सरफेस पे आ गई. तो ये जो पहला पॉइंट है जहाँ पे रेडिएशंस आई, दैट पॉइंट इज द एपिसेंटर, है ना. क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो अर्थक्वेक का जो ट्रेमर्स आएंगे या फिर जो झटका लगने वाला है वो कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पर लगेगा. तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया. सो पॉइंट ए इज द फोकस, दैट इज द point where actual earthquake happens, या point of origin of the earth, that is inside the earth. Okay, epicenter is on the surface. Clear है. और this is the point which actually feels the first tremor of the earthquake, जहाँ सबसे पहला झटका लगा. तो फॉर एग्जाम्पल जब भुज में earthquake आया था तो जो फोकस था इट वाज समवेयर डीप इनसाइड द बिलो द भुज, लेकिन उसका जो ट्रिमर आया, जो सबसे पहला जो फील हुआ वो कहाँ हुआ था, भुज में हुआ था. इसलिए सबसे ज़्यादा उसका जो नुकसान हुआ था वो भुज में हुआ था, गुजरात के अंदर. क्लियर है. तो द एपिसेंटर वाज इन भुज बट फोकस वाज किलोमीटर्स बीनीथ द भुज. ओके. द थर्ड पॉइंट इज एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू द फोकस. अच्छा, क्यों? क्योंकि जो फोकस है जो अर्थ के अंदर है, वहाँ से सरफेस पे जो डिस्टेंस है वो दैट शुड बी मिनिमम. जो वेव्स होती हैं वो सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगी, जहाँ पे वो सबसे डिस्टेंस, जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगा सबसे कम होगा. अच्छा, वो डिस्टेंस सबसे कम कहाँ पे होगा, जो परपेंडिकुलर उसके टॉप पे होगा. क्लियर है ये चीज़. जो फोकस है उससे परपेंडिकुलर सरफेस पे जो भी पॉइंट है दैट इज द एपिसेंटर, दैट विल बी द एपिसेंटर. ओके. सो दीज थ्री फैक्ट्स दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने भुज का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो भुज के अंदर अर्थक्वेक आया तो हम लोग उसको हम लोग उसको कहते क्या है कि भुज अर्थक्वेक. क्लियर है. हम लोग ये तो नहीं कहते कि गुजरात अर्थक्वेक. क्यों? क्योंकि गुजरात तो एक बड़ा एक स्टेट है, लेकिन उस पर्टिकुलर उस जगह उस पॉइंट का नाम क्या था, भुज था. क्लियर है. अच्छा, उस पॉइंट को हम लोग टेक्निकली अगर जोग्राफिकल टर्म्स से बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलेंगे. फोकस कहाँ होगा, उस भुज पॉइंट से कुछ 10-12 किलोमीटर नीचे होगा. क्लियर है ये चीज़. अच्छा, चलिए एक पॉइंट और है कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट एपिसेंटर. क्लियर है ये चीज़. क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो ट्रेमर आया वो कहाँ पे आया, भुज में आया, है ना. उस एग्जांपल में भुज में आया तो एपिसेंटर पे आया. तो जो सबसे पहला जो इंटेंसिटी हम लोग नापेंगे वो वहीं नापेंगे, क्योंकि जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, उस एपिसेंटर पे होगी. क्लियर है. और एपिसेंटर से दूर जैसे वो वेव्स ट्रेवल करेंगी उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएंगी, और कुछ किलोमीटर्स, कुछ 100-200 किलोमीटर बाद उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है. तो वहाँ मेजर करने का कोई सेंस ही नहीं है. इसलिए मेजर कहाँ करना होता है, हमेशा एपिसेंटर पे मेजर करते हैं. इसके लिए हमारा बाकायदा सेंसर्स लगे होते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इवन सेटेलाइट्स के थ्रू भी आजकल हम लोग इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है. क्लियर है. अब हम बात करेंगे वेव्स के बारे में. तो हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में कि जो अर्थक्वेक आता है तो 3 टाइप की वेव्स निकलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी, और द थर्ड वन और द सरफेस वेव्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी वेव्स. सो प्राइमरी वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया कि ये लंबवत है, यानी कि ये एक लाइन में चलती है ना, एक लंबे पाथ पे चलती है. क्लियर है. दे आल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव्स. कंप्रेशनल का मतलब उनमें कंप्रेशन भी होता है. अच्छा, आप सोचिए अगर कंप्रेशन हो रहा है तो चल कैसे रहे, मैं आई विल शो यू बाय एन वीडियो. सेकंड पॉइंट इज दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स. साउंड वेव्स भी कैसे चलती हैं, उसी तरीके से चलती हैं. क्लियर है. लेकिन अब मैंने 3 चीज़ें बता दी, अब तीनों में थोड़ा एक रिश्ता बता देता हूँ कि क्या हुआ कि लेट्स अज्यूम दिस इज ए वेव, है ना. उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये वेव की डायरेक्शन है ना, मूवमेंट की डायरेक्शन है. तो इस जब ये केस होंगे लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशनल या साउंड वेव्स जो होती हैं वो कैसे चलती हैं, उनमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, वो पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे होता है, थोड़ा आगे जाएगा,
फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे, फिर पीछे, ऐसे करते करते वो अपने पाथ पे चलता जाता है और फाइनली वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, इट इज़ अलोंग द पाथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेव। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। कंप्रेशनल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, जैसे ये पार्टिकल आगे गया वापस पीछे आया, तो यहाँ पे जब ये वापस पीछे आता है तो जो बाकी दूसरा जो पार्टिकल होगा, जो उसके पीछे के जो पार्टिकल होगा, वो दोनों में कंप्रेशन होगा। क्लियर है, इसलिए इनको कंप्रेशनल भी बोलते हैं। साउंड वेव्स तो ये टाइप है कि साउंड वेव्स भी इसी तरह ट्रेवल करती हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज दे ओरिजिनेट एट द फोकस। ध्यान रखिएगा, इन तीनों वेव्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ ये पॉइंट बताया कि ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, फोकस के ऊपर होती है। सेकेंडरी वेव्स दे आल्सो ओरिजिनेट एट द फोकस। सो जब भी फोकस कहाँ पर है, अर्थक्वेक के बीच में कहीं पे अंदर है, जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, जहाँ से सबसे पहला अर्थक्वेक शुरू हुआ था। क्लियर है, एपिसेंटर कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। भूलना मत, ये बहुत बेसिक नॉलेज है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है जानने के लिए। तो ओरिजिनेट एट द फोकस। टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट हो रहा है, टू एंड फ्रो, पार्टिकल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया, कैसा मूवमेंट हो रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ द वेव क्या है, ये है पार्टिकल मूवमेंट। कैसा होता है, टू एंड फ्रो, यानी कि टू एंड फ्रो का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा आगे गए, फिर हल्का सा पीछे आना, फिर वापस आगे गए, फिर हल्का सा पीछे जाना। क्लियर है ये चीज़। इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको अपने फादर से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी है, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि फादर अलाउ नहीं करेंगे, तो आपका दिल क्या बोलता है कि बात करना चाहिए, तभी तो पता लगेगा फादर को कि तुम्हारी नीड्स क्या हैं। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है मैं जाता हूँ हिम्मत करके। तो यू गो टुवार्ड्स योर फादर। क्लियर है, आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, तब आपका मन बोले अरे 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 मत जाओ, अभी नहीं, अभी टाइम सही नहीं है, बाद में डिसाइड करेंगे। क्लियर है, तो आप थोड़ा सा पीछे होगे, लेकिन फिर मन बोलेगा नहीं 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 नहीं, दिमाग बोलेगा नहीं 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 जाना चाहिए, है ना, रेशनल चीज़ है। तो आप फिर से थोड़ा सा हिम्मत आगे करोगे, फिर वापस से 2 कदम पीछे होगे। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो टू एंड फ्रो मूवमेंट। क्लियर ये चीज़। अच्छा, इनकी स्पीड जो होती है, द स्पीड ऑफ द पी वेव्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। अच्छा, हमारे पास 3 मटेरियल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। तो सबसे इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कहाँ पे होती है, सॉलिड्स में होती है। इनको एक मीडियम चाहिए होता है, जो साउंड वेव्स होती है उनको एक मीडियम चाहिए होता है, उस मीडियम में ये बहुत स्पीड में ट्रेवल करती हैं। क्लियर है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आपका मोबाइल है एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आपका जो स्टडी टेबल है उसमें मोबाइल रखा हुआ है, एंड आपका जो सर है वो आप एक तो ऐसा रख लीजिए, सर, हाँ, टेबल सामने लगा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, वो वाइब्रेट करेगा, यू वॉन्ट फील एनी वाइब्रेशन, आपको बस आवाज़ आएगी, बस इतना ही। लेकिन जब आप कान लगाएंगे सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर, और जब वो मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो आपको कैसा फील होगा, अंदर वाइब्रेशंस फील होंगी। क्लियर है ना चीज़। तो इसका मतलब जो वाइब्रेशंस है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किस में है, सॉलिड में है, जबकि आप जो गैसियस जो आपका कनेक्शन था उसमें नहीं है इतनी, और लिक्विड में इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्पीड होती है। सो दिस वाज अबाउट द पी वेव्स। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ये वेव डायरेक्शन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि वेव इधर से उधर जा रही है ना। यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट भी देखिए, ये पार्टिकल आगे जा रहा है, वापस पीछे आया, फिर आगे जा रहा है, फिर वापस थोड़ा सा पीछे आएगा। अल्टीमेटली इट इज गोइंग फॉरवर्ड, बट यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, वो थोड़ा सा आगे चलता है, फिर पीछे आता है। वही चीज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आपके फादर और आपका, क्लियर है ना। तो वो जो साउंड वेव वो भी ऐसी चलती हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगी, फिर पीछे आएंगे, फिर वापस आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। तो इसमें जब आगे जाने वाला जो पोर्शन होता है उसको तो बोलते हैं रेयरफेक्शन, और ये जो वापस बैक आने का जो पोर्शन होता है, जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है, तो ये इसको बोलेंगे कंप्रेशन। क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। क्लियर, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कंप्रेशनल वेव्स बोला जाता है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई ना। बहुत अच्छा है डायग्राम है, और बहुत अच्छे तरीके से ये आपको दिखा रही है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो वेव्स है ये कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, भूलना मत, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, इनकी स्पीड भी ज़्यादा है। स्पीड किससे ज़्यादा है, पीओ की जो स्पीड है दैट इज़ वेरी मच हायर देन द स्पीड ऑफ एस वेव्स एंड एल वेव्स। क्लियर, ये चीज़ सबसे ज़्यादा स्पीड में, इसलिए सबसे पहले जब कोई अर्थक्वेक आता है तो फोकस से जो एपिसेंटर पे जो सबसे पहले वेव आएगी वो कौन सी होगी, पी वेव्स होंगी। क्लियर है। तो इसीलिए जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, रिचर स्केल पे मेजर कर रहे हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसको रिकॉर्ड करने वाला, सिस्मोग्राफ हो गया। तो जो सिस्मोग्राफ है वो जो सबसे पहले जो ट्रिमर फील करेगा वो कौन सी वेव का होगा, वो होगा पी वेव का। क्लियर है। बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंडरी वेव्स के बारे में। पी वेव्स आप लोगों को समझ में आ गई है। कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ये दे कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट स्पीड ज़्यादा कहाँ होती है, सॉलिड्स में होती है। दूसरी चीज़, इनको लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल या फिर
साउंड वेव्स का एक एग्जांपल है, तो ये दोनों भी कह सकते हैं। इनको डिनोट कैसे करते हैं? पी से करते हैं। कौन सा लेटर? कैपिटल लेटर पी से डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम बात सेकेंडरी वेव्स के ऊपर, और मोशन कैसा हो रहा है वहाँ पे? टू एंड फ्रो हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी वेव्स की बात करेंगे। यहाँ मोशन थोड़ा अलग है, पार्टिकल मूवमेंट थोड़ा अलग है, इसलिए इनको हम लोग कुछ और नाम भी बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्रॉस कैसे हो रहा है। तो ट्रांसवर्स का मतलब हो गया कि क्रॉस करना, किसी चीज़ को आप क्रॉस करते हैं, तो इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। सिमिलर टू लाइट वेव्स और वाटर रिपल्स। अच्छा, लाइट वेव्स तो चलो ठीक है, आप लोगों को थोड़ा अभी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन वाटर रिपल्स तो आप लोगों ने देखे होंगे ना। आप एक लेक में गए, लेक में आपने पत्थर लिया, पत्थर फेंका, लेक का पानी कैसा होता है? बिल्कुल काम होता है, लेकिन जब पानी पत्थर गिरा तो वो रिपल्स शुरू होती है। रिपल्स देखिए कैसी होती है, वो ऐसे लहराती हुई हल्की हल्की ऐसे निकलती हैं, दूर दूर जाती है, तो वैसे उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो वो रिपल्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, जबकि वो जा किधर रही है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होती है ना। वो वेव डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है। और मूवमेंट कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। तो वही चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो वो मूवमेंट जो हो रहा है पार्टिकल्स का या पानी का जो मूवमेंट था, वो उस पाथ को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला गया? ट्रांसवर्स वेव्स भी बोला गया। इसी तरह हमारी जो लाइट वेव होती है, ये जो हमारे जो लाइट घर के अंदर जो आपके एलईडी बल्ब्स होते हैं या ट्यूबलाइट्स होती है, उनसे जो लाइट आ रही है वो भी ऐसे ट्रेवल करती है। सन से जो लाइट आ रही है वो भी ऐसे ही ट्रेवल करती है। क्लियर है चीज़? अच्छा, दे ओरिजिनेट एट द फोकस सेम एज द प्राइमरी वेव्स। ओके, जो फोकस होता है तो सबसे पहले वहाँ से पी वेव्स, एस वेव्स दोनों जनरेट होती हैं, लेकिन पी वेव्स जल्दी पहुँचती है सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि पी वेव्स की स्पीड इज मोर देन द स्पीड ऑफ एस वेव्स। क्लियर है? देन द थर्ड इज द परपेंडिकुलर पार्टिकल मूवमेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। सिंपल है, थोड़ा सा आपको सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सिंपल लिखा कि पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होता है? टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। क्लियर है? वो चीज़ हम लोग अभी मैं आपको एक एनिमेशन के तो दिखाऊंगा, बहुत अच्छा एनिमेशन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वैसे हम लोगों ने अभी वाटर रिपल्स की बात करी तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। ओके, बट दे डिसअपियर इन लिक्विड्स। अच्छा, पी वेव्स की खासियत क्या है कि दे कैन ट्रेवल इन बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। एक मीडियम होना चाहिए, कैसा भी हो चलेगा, स्पीड ऊपर नीचे होती है, लेकिन एटलीस्ट दे कैन ट्रेवल। बट एस वेव्स जो होती हैं दे डिसअपियर इन लिक्विड्स, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए हम लोग आगे इनके शैडो जोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि पी वेव्स जो एस वेव्स है कहीं ना कहीं वो गायब भी हो जाती है इसके अंदर। मतलब ये थोड़ा सा चीज़ें हैं इट्सी बिट्सी, लेकिन वो हम लोग देखेंगे आगे। सो लास्ट वन इज द दे आर स्लोअर देन द प्राइमरी वेव्स पी। ओके, जो मैंने ये पहले भी बताया था, वापस ही रिपीट कर रहा हूँ। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगा कि जो प्राइमरी वेव्स होती है उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकेंडरी वेव्स आती है जिनकी स्पीड होती है प्राइमरी से कम होती है, लेकिन जो एल वेव्स होती है उनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो एल वेव्स होती है, जो लॉन्ग वेव्स या लव वेव्स जो उनको बोलते हैं, सरफेस वेव्स बोलते हैं, दे आर स्लोअर देन द पी वेव्स एंड एस वेव्स। क्लियर है? अब इनका हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। अब देखिए जरा, वेव डायरेक्शन वही रखा है मैंने, उसमें भी वही था, है ना, इसमें भी वही रखा है, वेव डायरेक्शन वही है, लेकिन वहाँ पार्टिकल का मूवमेंट कैसा हो रहा था? टू एंड फ्रो, मतलब ये पार्टिकल आगे गया फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, लेकिन यहाँ मूवमेंट कैसा हो रहा है? देखिए जरा। अब आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री तो लग ही नहीं रहा किसी एंगल से, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स क्यों है? दे एक्चुअली क्रॉसिंग दिस पाथ, ये जो आपका वेव का जो पाथ है उसको क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए सर ये ट्रांसवर्स तो है, लेकिन आपने बोला था परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो है ही नहीं सर, ये तो चीटिंग होगी। ये चीटिंग नहीं है बेटा, ये जो मैंने आपको फ्रेम दिखाया है ये बहुत ही एक माइन्यूट फ्रेम को मैंने एनलार्ज करके दिखाया है। ये एक्चुअल में कैसा मूवमेंट होता है? इस तरीके का मूवमेंट होता है। तो दैट इज 0.001% लेस देन द 90 डिग्री एंगल। क्लियर है ये चीज़? सो इसलिए उतना मैटर करता नहीं है। और आपको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए हिसाब से मैंने आपको ये दिखाया कि साइनोसॉइडल एक पाथ बन रहा है। देखिए, अच्छा वाटर रिपल्स को याद है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वाटर रिपल्स जो पत्थर फेंका झील के अंदर, रिपल्स जनरेट हुई, वो रिपल्स भी ऐसी होती है ना, पानी जब बहना शुरू होता है, जब वो पत्थर फेंकने के बाद वो ऐसे निकलता है, चीज़ है ना, वाटर रिपल्स हो गया या फिर ट्रांसवर्स वेव्स हो गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत ही इजी डायग्राम है समझने के हिसाब से। अच्छी जो ये बॉल देख रहे हैं, एक्चुअली ये पार्टिकल को मैंने डिनोट किया है। डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन है इसका। क्लियर है ये चीज़? और ये जा कैसे रही है? ये किसी एक सर्टेन एंगल पे जा रही है। हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर एग्जैक्ट 90 नहीं होता, 0.01% का डिफरेंस होता है, लेकिन उतना माइन्यूट डिफरेंस मैटर नहीं करता है। क्लियर है? और उनकी स्पीड होती है वो पी वेव से कम होती है और एल वेव से ज़्यादा होती है। ठीक है? दे ओरिजिनेट एट द फोकस
इसके अलावा और क्या फैक्ट था हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था, जो मैं अभी बोला नहीं लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि दे एक्चुअली डिसअपियर इन लिक्विड्स, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम है। सपोज कर लीजिए इस यहाँ कहीं पे एक अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो अर्थक्वेक जनरेट होने पे दोनों टाइप्स की वेव्स निकल रही हैं, पी वेव्स भी निकल रही है और एस वेव्स भी निकल रही हैं। तो एस वेव का मूवमेंट देखो कैसे हो रहा है, ये हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। एस वेव का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, जैसे सांप चल रहा है ना वैसा। क्लियर है ये चीज़? जबकि पी वेव्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है कि ये स्प्रिंग की तरह बाउंस कर रही है। क्लियर है? ये देखिए, तो ये जो पोर्शन है जहाँ पर ये चलती जा रही है, यहाँ पे वापस पीछे भी आ रही है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे बाउंस हो रही है स्प्रिंग की तरह। तो ये जो कंप्रेस हो रही है उसको तो बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे रिलीज हो रहा है उसको बोलते हैं रेफ्रैक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का है, जबकि ये जो प्रोसेस है ये आपकी ट्रांसफर वेव्स या फिर लाइट वेव्स का है। क्लियर है ये चीज़? बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप हाथों के मूवमेंट को इनको नोटिस कीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फिर एक आपका एनिमेशन दिखाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है हाथ का, वो कैसा हो रहा है? हॉरिजॉन्टल हो रहा है। यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है। वर्टिकल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? एक रस्सी है ना, जो आप लोगों ने बचपन में रस्सी कूद करते हैं, हम लोग दो बच्चे पकड़ लेते हैं, बीच में से घुमाते हैं, तो वो जो रस्सी कूद होता है वैसा ही कुछ मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करें शैडो जोन्स के बारे में। अब ये शैडो जोन्स क्यों बने? क्योंकि अभी हम लोगों ने अर्थ वोल्केनोज में देखा था कि अंदर से लावा ही निकला है। तो लावा कैसी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब कि अर्थ के अंदर लिक्विड है। लिक्विड है तो वहाँ पे एस वेव्स जानी चाहिए क्या? नहीं जानी चाहिए। क्लियर है चीज़? अच्छा, पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। लेकिन एस वेव्स दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एस सर्फ दैट लिक्विड, है ना, स्टेट ऑफ द मैटर। सो अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, ये पी वेव्स का शैडो जोन है। क्लियर है ये चीज़? सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया। क्लियर है? तो इसको ये जो पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक आया उसको हमने क्या बोला? फोकस बोला। क्यों? फोकस इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। क्लियर है? अच्छा, ये जो फोकस है यहाँ से वेव्स निकली, लेकिन वो वेव्स सरफेस पे गई है, बहुत ही माइन्यूट, कंपेरेटिवली देखेंगे तो बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस है, इसलिए मैंने उसको डिनोट नहीं किया है। लेकिन वो जो वेव्स थी वो ऐसा थोड़ी कि केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वो चारों तरफ 360 डिग्री पे वो निकलती है उस पॉइंट से। क्लियर है ये चीज़? तो वो जो वेव्स निकलना शुरू हुआ तो कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ सीधी भी जा रही हैं, कुछ उधर भी जा रही हैं। क्लियर है? तो ये देखिए कि जब वो वेव्स आई, सॉरी, उसके बाद ये एक सरफेस आया, बीच में एक अलग एक पोर्शन ऑफ द अर्थ आया, तो वहाँ पे ये वेव्स हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है इसके ऊपर, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएंगी। लेकिन जो सर्टेन एंगल पे आ रही है उनकी डायरेक्शन आप देखिए हल्का सा चेंज हो रहा है। इसके चेंज होने का कारण क्या है? इसको हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन, कि व्हेन एनी वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों चेंज होती हैं। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, दूसरा बात ये कि जो पी वेव्स की जो डायरेक्शन है वो लिक्विड में कैसी होती है? कम होती है, सॉलिड्स में ज़्यादा होती है। तो ये जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा है? एक्चुअली में लिक्विड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि कैसे पता लगा कि यहाँ देखिए सॉलिड तो है ही ऊपर, ये तो हमको पता है, लेकिन इनसाइड में कैसा है? लिक्विड में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, ये आपका ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर वापस जैसे ये लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में आएंगी, इसके बाद डायरेक्शन वापस चेंज होगी एंड दे रीचेस टू द अदर साइड ऑफ द अर्थ। जो पॉइंट था उसके अपोजिट में, जहाँ भी अर्थ के ऊपर पॉइंट था वहाँ पे वो वेव्स पहुँचती है। इंटेंसिटी कम होती है। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी? जो इसके फोकस के ऊपर जो एपिसेंटर होगा वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक के ट्रेमर्स ज़्यादा फील किए जाएंगे। अपोजिट साइड में नहीं होगा ऐसा कुछ ना, बहुत हल्के हो सकते हैं अगर ज़्यादा लेवल का, अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो ये जो जोन आप देख रहे हो कि ये अर्थक्वेक पहुँची यहाँ बन गई है, तो ये जो जोन है दैट इज़ 145 डिग्री। क्लियर है? वहाँ से लेके इधर 145 डिग्री ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट बता देता हूँ, थोड़ा सिंपल रहेगा आप लिए। तो ये 145 डिग्री वेस्ट हो गया, 145 डिग्री ईस्ट हो गया। तो यहाँ तक ये वेव्स पहुँच रही है, लेकिन ये जो ग्रीन जोन देख रहे हैं यहाँ पे वेव्स नहीं पहुँच पा रही है। तो ये जो नहीं आ रही है इसलिए इनको क्या बोला गया? शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। क्या बोला गया? शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। अच्छा, ऊपर जो है यहाँ पर देखिए 105 डिग्री वेस्ट और 105 डिग्री ईस्ट, यहाँ तक ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। यहाँ तक अगर आप सिस्मोग्राफ रखेंगे तो उसके अंदर इसकी इंटेंसिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कम होगी, लेकिन स्टिल यू कैन रिकॉर्ड पी वेव्स एट दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट, दैट इज़ 105 डिग्री ईस्ट एंड 105 डिग्री इन द वेस्ट। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं 105 से लेके 145 डिग्री का बीच का, है ना, तो ये लगभग 40 डिग्री का जो बेल्ट है, इस तरफ भी है उस तरफ भी है। क्लियर है? थोड़ा सा 3D में इमेजिन कीजिएगा कि ये अर्थ एक राउंड है, एक फुटबॉल है, तो ये जो एक बेल्ट होगा यहाँ से चलेगा और वापस यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो कंप्लीट बेल्ट होगा अर्थ के ऊपर,
ठीक है, थोड़ा 3D में इमेजिन कीजिएगा। वो जो बेल्ट होगा उस बेल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्थक्वेक। क्लियर है ये चीज़? क्यों यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि जो मैक्सिमम जो लिमिट थी दैट इज़ 105 डिग्री, यहाँ तक तो क्लियर उसकी वेव्स आ रही हैं, लेकिन 105 से ऊपर अगर कोई वीडियो यहाँ पे कोई वेव आ रही थी, वो वेव क्या होगी, वो हल्का सा डायरेक्शन चेंज होगा एंड इट विल रीच टू 145 डिग्री वेस्ट। क्लियर ये चीज़? तो ये जो ब्लैंक रह गया, ये जो जोन रह गया, ये जो एरिया रह गया जहाँ पे पी वेव्स रिकॉर्ड नहीं हुई, उसको हम लोगों ने क्या बोला, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 105 से 145 डिग्री। क्लियर है? और कितना है, लगभग 40 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली ये बेल्ट है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप इसको 3D में इमेजिन करेंगे तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एक बेल्ट हो जाएगा। उस बेल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। क्लियर है ये चीज़? आगे चले, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले हैं शैडो जोन ऑफ एस वेव्स के बारे में। अच्छा, एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल और कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स। ये हमने एक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। क्या कि जब मान लीजिए वही अर्थक्वेक आया, वहीं से वही रेडिएशंस निकली, वेव्स निकली, तो वो जो वेव्स है वो यहाँ तो रिकॉर्ड हो रही है सब जगह, है ना। ये 105 से लेके पूरा एक यहाँ तक, यहाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये जो नीचे का जो पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं हो रही है। क्लियर है ये चीज़? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कर लिए यहाँ अर्थक्वेक आया, यहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थक्वेक आ चुका है, तो यहाँ इस जगह पे अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट बैठा है, वो वेट कर रहा है सिस्मोग्राफ लेके कि अर्थक्वेक आएगा एंड आई विल रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक की इंटेंसिटी तो रिकॉर्ड हो जाएगी क्योंकि पी वेव्स बताएंगी, लेकिन अगर वो एस वेव्स को अगर रिकॉर्ड करने बैठेगा तो क्या वो एस वेव्स को रिकॉर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ तो एस वेव्स पहुँची नहीं। क्लियर है चीज़? जैसे पी वेव्स नहीं पहुंची थी उस पर्टिकुलर बेल्ट 105 से 145 डिग्री के, वैसे यहाँ पर भी नहीं पहुंच पा रही है। तो 105 से 105 का जो बेल्ट है, ये जो रीजन है जहाँ पे पी वेव्स नहीं आ रही हैं या एस वेव्स नहीं आ रही हैं, इस बेल्ट को क्या बोलेंगे, इस रीजन को क्या बोलेंगे, शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। क्लियर है ये चीज़? वापस से बताऊँ? अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये जो वेव्स यहाँ आ रही है, टकरा रही है, उनका क्या होगा? तो ये जो वेव आई जो 90 डिग्री पे आई वो वापस टकरा के निकल जाएगी, बाकी जो सर्टेन एंगल पे आएंगी वो वापस डिस्पर्स हो जाएंगी इस तरीके से। क्लियर है ये चीज़? तो ऐसे क्या होगा कि वो, अच्छा डिस्पर्स क्यों हुई? क्योंकि दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड्स। क्लियर है ये चीज़? लिक्विड में वो ट्रेवल नहीं करेगी। एक गांठ बांध लो कि नहीं करना तो नहीं करना, एस वेव्स को नहीं घुसाना लिक्विड के अंदर। तो जब वो घुसेगी नहीं तो यहाँ से निकलेगा कहाँ से वो? क्लियर है ये चीज़? जबकि पी वेव्स है दे कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। क्लियर है ये चीज़? तो ये डिफरेंसेज है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने जब यहाँ से वो एस वेव्स गई, उनको रिकॉर्ड किया, तो उनको पता लगा कि एस वेव्स यहाँ पहुँची नहीं। तो इसका मतलब कि अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिक्विड स्टेट में है। वो लिक्विड स्टेट क्या कर रही है? इट इज स्टॉपिंग द एस वेव्स टू ट्रेवल टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है ये चीज़? आगे चलें, ये शैडो जोन समझ में आ गया। अब एक बहुत अच्छा एनिमेशन है, आप देखिए। ये मिक्स है, पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों ट्रेवल कर रही हैं। ये 105 तक पहुंच रही है। क्लियर है? यहाँ तक तो दोनों वेव्स आ रही हैं। क्लियर है? पी और एस वेव्स। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कौन सी वेव आ रही हैं? थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। यहाँ से यहाँ तक जो वेव्स आ रही हैं वो आ रही हैं पी वेव्स ओनली। क्लियर है? अच्छा, ये जो रीजन है 105 से 145 वाला, यहाँ पे ना तो पी आ रही है और ना ही एस आ रही है। ठीक है, दोनों क्या है? एब्सेंट है। अच्छा, एस वेव्स और कहाँ गायब है? एस वेव्स इस वाले एरिया में भी गायब है। तो इसका मतलब 105 से लेके 105 इधर एस वेव्स नहीं है, जबकि पी वेव्स जो है वो वापस अपीयर होती हैं कहाँ? 145 से 145। क्लियर है ये चीज़? तो ये जो डॉटेड लाइन्स आप देखेंगे 105 से 145 का, क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सी वेव आ रही है? कोई वेव आ रही है क्या? यहाँ पे कोई सी भी वेव नहीं आ रही है अभी। क्लियर है ये चीज़? वेव यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जो वेव आने वाली हैं वो कौन सी वेव्स है? पी वेव्स है। वापस से देखिएगा, फोकस, डॉटेड है इसका मतलब नहीं है। ये वापस वेव आई यहाँ पे, उधर वो वेव आई वहाँ पे, तो ये क्या है? पी वेव्स है। यहाँ पे जो वेव आ रही है, यहाँ पे पी और एस दोनों आ रही हैं। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है इसमें? दोनों को हमने एक साथ दिखाने की कोशिश करी है, इसीलिए मैंने पहले दोनों को अलग अलग दिखा दिया, अब दोनों को एक क्यूमुलेटिव एक साथ दिखा दिया आपको। आगे चले, अब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी एंड एस वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। अब क्या होता है कि पी वेव की स्पीड जो है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो वो जो हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हर माइन्यूट चेंज के ऊपर हम लोगों ने एक अलग कर दिया, नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो पी वेव्स होती हैं वो नॉर्मली 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। क्लियर है ये चीज़? आप सोचिए कितनी फास्ट स्पीड है।
लेकिन पी स्टार जो होती है वो इससे थोड़ा सा स्लो होती है, पी वेव से थोड़ा स्लो होती है, उनकी स्पीड होती है 6 to 7 किलोमीटर्स पर सेकेंड, क्लियर है। जबकि जो पी जी होती है दैट इज़ 5.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये डिपेंड करता है वो कौन सी मीडियम में है, किस टाइप का वो कंटेंट है या मटेरियल है, वो लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, विस्कस भी हो सकता है, या बहुत डाइल्यूटेड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तो वो स्पीड अलग अलग वेरी करती है, इसलिए हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बना दी कि अगर 7.8 से 6.7 है तो पी होगी 6 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और इससे कम है तो वो 5.4 वाली है, उससे कम है तो पी जी होगी। ऐसे एस वेव्स भी है। एस वेव्स नॉर्मली इनकी स्पीड कितनी होती है 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, देखिए कम है ना, ठीक है। एस स्टार की स्पीड कितनी होती है 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि एस जी की जो होती है लेस देन 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर ये चीज़, ये क्योंकि मीडियम अलग अलग है इसलिए इनकी स्पीड भी अलग अलग है। आप बोलोगे सर इसमें लिक्विड का कौन सा है, लिक्विड का कौन सा ही नहीं है, सॉलिड स्टेट के अंदर भी विस्कोसिटी हो सकती है, तो अगर हाईली विस्कस है तो भी इसकी स्पीड मैटर कर जाएगी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सरफेस वेव्स के बारे में, बहुत डेंजरस होती है, बहुत खतरनाक होती है। अच्छा, दे आर ऑल्सो नोन एज लव वेव्स, लॉन्ग वेव्स और रेलिक वेव्स। क्लियर है, नाम पे मत जाना है ना, नाम नैन सुख और आँख अंधा वाली बात है ये। तो ये लव वेव्स को बोलते हैं, लेकिन ये इसीलिए एल लिखा हुआ है, एल फॉर लव, एल फॉर लॉन्ग वेव्स। क्लियर है, लेकिन बहुत डिवास्टेटिंग होती है, बहुत नुकसान करती है ये, एक्चुअल में नुकसान यही करने वाली है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये दे ओरिजिनेट एट द अर्थ सरफेस व्हेन पी एंड एस वेव्स रीच द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका ओरिजिन कहाँ हो रहा है, अर्थ के सरफेस पे हो रहा है। अच्छा, अर्थ के सरफेस पे अर्थक्वेक कहाँ आ रहा है, जबकि अर्थक्वेक का जो ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो कहाँ है, फोकस के ऊपर। फोकस कहाँ होता है, अर्थ के अंदर होता है, नीचे कहीं डीप होता है। ठीक है, फोकस से पी और एस वेव जब सरफेस पे पहुँच जाती हैं, उसके बाद वो पी और एस वेव जो हैं उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको हम लोग एल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल वेव्स या सरफेस वेव्स। कैसे होता है, अभी मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा बहुत बढ़िया, उसमें आपको पी वेव्स की वजह से कैसा मूवमेंट होगा सरफेस के ऊपर, एस वेव्स का कैसे होगा और एल वेव्स का कैसा होगा, वो सब देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो वापस ही देखिए कि अगर मान लीजिए ये हमारा सरफेस है अर्थ का, यहाँ नीचे कहीं पे एक पॉइंट था, उस पॉइंट से अर्थक्वेक आया, फोकस। क्लियर है, तो वहाँ से जो पी वेव्स आती हैं वो कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी, वो आके ऐसे टकराएंगी। तो ये कैसे होगा, अभी याद है ना वो एक हाथ वाला डायग्राम दिखाया था मैं, बाउंसिंग वाला स्प्रिंग की तरह। तो ये जो ऊपर जो घर होगा, जो सरफेस होगा, कैसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा। क्लियर है, ऐसे वेव्स कैसे आती हैं, ऐसे ऐसे आती हैं, है ना, ऐसे ऐसे आती हैं। तो ये जो घर होगा कैसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा, या हाथ, जो हाथ वाला डायग्राम था वो कैसे हिल रहा था, ऐसे हिल रहा था। क्लियर है, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, आप सोचो ऐसे भी हिलना है और ऐसे भी हिलना है, तो रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसे होगा। तो रिजल्टेंट होता है दैट इज लाइक दिस, रोलिंग मोशन होता है शुरू, इसकी वजह से क्या होता है, नुकसान होता है ना। तो दे ओरिजिनेट एट द सरफेस, अर्थ सरफेस व्हेन पी एंड एस वेव रीच द सरफेस। ध्यान रखिएगा इनका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है। सरफेस पे भी कहाँ पे होगा, पी वेव, जो एपिसेंटर है सबसे पहले वहाँ से शुरू होगा, उसके बाद क्योंकि एपिसेंटर में सबसे पहले पी वेव्स पहुँचेगी या एस वेव्स पहुँचेगी, जो नियरिंग जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पे बाद में पहुँचेगी। क्लियर है ना ये चीज़, क्योंकि एपिसेंटर क्या है, दैट इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द फोकस, तो सब डिस्टेंस जो कैसा होगा, शॉर्टेस्ट होगा, तो सबसे पहले पहुँचेंगे। क्लियर है। थर्ड, दे कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड्स। यही तो नुकसान कर रहा है ना, तभी तो सुनामीज आ रही हैं। तो दे कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंडरी वेव्स दे कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड्स, दे कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड्स। क्लियर है, वेयर एज एल वेव्स दे कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, नॉट इन गैस। ओके, सो ये जो तीनों वेव्स होती हैं, इन तीनों को आपको डिफरेंसेस में बताता जा रहा हूँ पॉइंट वाइज, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं और वो ऐसे आते हैं ना, फिर उस टाइम फिर मेरी याद आएगी आप लोगों को। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है, स्लोवेस्ट होती है। मैंने पहले बताया था पी वेव के टाइम में भी कि सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है, पी वेव्स की होती है। उससे कम किसकी होती है, सेकेंडरी। उसके बाद सबसे कम किसकी होती है, एल वेव्स की होती है। ये बहुत धीरे चलती है, तसल्ली से चलती हैं। इनको ये है कि नुकसान तो करना है मुझे, तो आराम से चलूँ, बस वैसा हिसाब है। क्लियर है। लास्ट पॉइंट है, मोस्ट डिजास्ट्रस इन नेचर ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। ऑफ कोर्स ये बात है, अब कैसे डिजास्ट्रस वो हम लोग देखेंगे। मैंने क्या बताया था कि जो पी वेव्स होती हैं वो ऐसे बाउंस करती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं वो ऐसे सेक करती हैं, हिला देती हैं, जबकि जो रोलिंग मोशन होता है वो किसका होता है, एल वेव्स का होता है। रोलिंग मोशन में क्या होता है, वो चीज़ें ऐसे हिलती हैं सरफेस के ऊपर, ऐसे जो मूवमेंट होता है तो दरारें आती हैं, घर टूटते हैं, बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया तो। अब एक एग्जाम्पल, एक एनिमेशन देखिएगा, यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया, इस अर्थक्वेक से देखिए पी वेव तो गायब ही होगी, पी वेव से बाउंस होना है। ठीक है, ये जो आ रहा है ये एस वेव्स है,
ये कैसे हिलाने वाली है इसको, ये थोड़ा स्लो है पी वेव से, इसलिए ऐसा हिला है। ये जो सबसे लास्ट में जो पहुंचा ये एल वेव्स थी, सरफेस वेव्स है, क्योंकि सरफेस पे चल रही है, इससे घर टूट गया है ना, नुकसान हो गया। इसीलिए सबसे डिजास्टर्स कौन सी होती हैं, एल वेव्स होती हैं। वापस से देखिए, पी वेव्स पहुंच गई है, सेकेंडरी वेव्स पहुंचने वाली हैं, और ये एल वेव्स जो सबसे स्लो है ये सबसे लास्ट में पहुंचेगी, और सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करने वाली है, एल वेव्स करने वाली है। क्लियर है, ये देखिए क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं, है ना, कुछ सेकंड्स की बात है। पी वेव्स निकली, बहुत फास्ट जा रही है, जाके इसको बाउंस करेंगी, ये बाउंस होना शुरू हुआ तो घर ऐसे हिलेगा। सेकेंडरी वेव्स आएंगी तो घर कैसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा। तो 2D मोशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरफेस वेव्स आएंगी, जो एल वेव्स आएंगी, वो क्या करेंगी, 3D में मोशन होगा, ऐसा रोलिंग मोशन होगा, तो उसमें क्या होगा, घर नुकसान हो जाएगा, बिल्डिंग्स वगैरह, डैम्स वगैरह टूट जाते हैं। क्लियर है। अब वापस से हम लोगों ने जो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में देखे थे, नाउ वी विल आंसर दोज क्वेश्चंस। क्लियर है। अब मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको आंसर्स भी बताऊं, अदरवाइज आप बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, मतलब मज़ा नहीं आया, आपने आंसर्स नहीं दिए। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज द अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2014 क्वेश्चन, रिचर स्केल, मर्कली स्केल, 5 स्केल एंड टाइम स्केल। अब आप बोलोगे कि सर ये तो दोनों पे मेजर होता है, रिचर स्केल पे भी होता है, मर्कली स्केल पे भी होता है, लेकिन in general life, in general science, we actually use richer scale at large. Mercury scale है, बहुत पहले यूज होती थी, अब उसका यूज नहीं होता है। तो today we use richer scale to measure the intensity of the earthquake. Second, so our right answer is richer scale. Second question is average density of earth is, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पूछा हुआ है, 2.5, 3.5, 5.5 एंड 11। तो राइट आंसर 5.5। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, इसलिए भूलना मत, क्लास में मिलोगे ना तो टांग खिंचाई करूँगा मैं, है ना। मैं एक चीज़ और याद रखेगा, ये क्वेश्चन मैं फिर पूछूंगा क्लास के अंदर, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्थक्वेक्स। IS प्री 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन था द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन मर्कली स्केल, सही है। सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज, ये भी सही था। वो मर्करी स्केल, रिचर स्केल, एक्चुअली दे बोथ डू द सेम थिंग, वो एनर्जी को मेजर कर रही है। The earthquake magnitude are based on the direct measurement of the amplitude of the seismic waves. Seismic waves का जो इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से तो earthquake की हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो ये भी सही है। सवाल क्या पूछा है, वापस से ध्यान रखना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग जल्दीबाजी मिस कर जाते हैं। क्या पूछा हुआ था कि नॉट करेक्ट, लेकिन ये तीनों तो करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, जो आंसर 4 है दैट शुड बी आवर आंसर, कि वो गलत होना चाहिए, लेकिन वो गलत है कि नहीं है, लेट्स फाइंड आउट। इन द रिचर स्केल, रिचर स्केल की बात हो रही है, ईच होल नंबर demonstrate a 100-fold increase in the amount of the energy released। कितना, कि अगर मान ली रिचर 1 अगर स्केल के ऊपर, अगर 1 स्केल के ऊपर अर्थक्वेक आ रहा है, अच्छा उसके बाद जब 2 पे आएगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो 100-fold, 100 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा सपोज कर लीजिए 100 था उसका एनर्जी लेवल, 200 पे कितना हो जाएगा, 100 × 100 कर दीजिए, 300 पे कितना होगा, 100 × 100 × 100 कर दीजिए, मतलब 100 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा रियल में होता है क्या, नहीं। वो तो अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा, मतलब 4-5 के ऊपर भी तहस नहस हो चुका होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कितने टाइम्स होता है, ये हमारा गलत आंसर है वैसे तो, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 4। ये बोला 100 टाइम्स, 100 फोल्ड्स, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है, 32 टाइम्स ही होता है। क्लियर है ये चीज़, कि अगर मान लीजिए एक, है ना, मतलब इंटेंसिटी 1 के ऊपर 100 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हुई है, तो जो 2 होगा एट द रिचर स्केल 2, एनर्जी कितना होगा, 3200। क्लियर है ये चीज़, तो ये 32 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर है ना ये चीज़, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, और हमको क्या निकालना था कि कौन सा गलत है, तो वही हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों, बाकी तीनों सही है। आप वैसे भी टिक लगा सकते थे अगर इफ़ यू आर श्योर कि ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो सही है तो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक वेव्स। हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट भी देखा था, सिस्मोग्राम नहीं, सिस्मोग्राम यस, सिस्मोस्कोप नहीं, सिस्मोमीटर नो। क्यों, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, सिस्मोग्राफ था। सिस्मोमीटर क्या था, वो जो बॉब था, वो जो वायरिंग थी, नीचे जो पेन था जो मार्किंग कर रहा था, उसको तीनों को मिला के हम लोगों ने क्या बोला, सिस्मोमीटर है। अच्छा सिस्मोग्राम क्या था, सिस्मोग्राम याद करो, वो रोलर था, है ना, जिसके ऊपर वो मार्किंग आती है, वो रोलर घूमता है। मैंने कहा था आजकल डिजिटल हो चुका है वो, क्योंकि पेपर इतना यूज़ करना इज़ नॉट पॉसिबल, बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, तो इसलिए वो मार्किंग आजकल डिजिटल हो गया। पेन एक स्क्रीन पे चलता रहता है, रोलिंग स्क्रीन होती है, कर्व्ड स्क्रीन होती है, उस पर चलता रहता है, वो रिकॉर्डिंग होती रहती है। आप आज से 10 साल पहले का भी डाटा निकाल सकते हो, इतना हमको सहूलियत है, जबकि पेपर जो होता है डिकम्पोज हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज़ सिस्मोग्राफ। ओके, सो दिस वॉज आवर टुडेज लेक्चर। I hope you enjoyed it and learned a lot about the Earth's interior.
अभी पूरा नहीं हुआ है, लेक्चर नंबर 2 भी आएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब कौन बताएगा आपको कि लेक्चर नंबर 2 आया नहीं आया? मैं आपको पर्सनली SMS नहीं करने वाला हूँ। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर परिष्कार वर्ल्ड चैनल ऑन YouTube and press the bell icon to get the latest notification, as well as you have to subscribe to our Pariskar College channel on YouTube, and my next video will be on this channel. Okay, so नोटिफिकेशन कैसे आएगा? बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि अजय सर का मैं आ चुका है वीडियो, गो एंड वॉच द वीडियो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू गिव 5-star रेटिंग टू आवर परिष्कार वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑन आवर Google Play Store. So just go there, download it, and start watching the videos which are available free on that channel, on that application, and give 5-star rating to our applications, because we are doing a lot of hard work to to transfer this knowledge from us to you. So at least we deserve this much. Okay, thank you. सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें।